Okay friends, so this question is the another question for your statutory trainee interview and scientific assistant interview. Fluid mechanics में Bernoulli equation is one of the most important topics, and he will ask you that can you write Bernoulli equation, and you know there are different ways to write Bernoulli equation. अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. So फिर आप लिखना स्टार्ट करते हैं P by rho g plus Z प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिखते हैं आप. ओके डन. इसका यूनिट क्या है? आप बोलते हैं सर ये मीटर में है, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी ये बोलती है कि हर यूनिट, हर टर्म का यूनिट भी सेम होगा. तो दिस इज रिटन एज मीटर. लेकिन बर्नौली इक्वेशन तो एनर्जी इक्वेशन है. यस सर, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी, but it is written in terms of head of particular energy. This is called pressure head, this is called pressure head, this is called datum head, and this is called kinetic head. Kinetic head, and let me tell you, kinetic head को measure करती है पिटा ट्यूब. इन तीनों टर्म्स को अगर जोड़ दिया जाए, if I add all these three terms, they are called total energy या energy gradient line, EGL. Kinetic head, pressure head, datum head collectively is called energy gradient line. What is the significance of energy gradient line? Sir, if you give me a pipe in which fluid is flowing, horizontal pipe, uniform cross section, draw the energy gradient line. Okay, can you tell me direction of flow? Now if the एनर्जी ग्रेडियंट लाइन इज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो जो स्लोप है वो आपको एनर्जी लॉस, हेड लॉस, जो डार्सी इक्वेशन से निकाल सकते हैं HF, इट इज प्रोवाइडेड बाय दैट. ऑल दीज टर्म्स एट सेक्शन 1 माइनस ऑल दीज टर्म्स एट सेक्शन 2 विल गिव यू हेड लॉस, बिकॉज रियल फ्लूइड है. बट बर्नौली इक्वेशन इज रिटन फॉर आइडियल फ्लूइड्स, वो इनविसिड फ्लो है. दिस इज वन ऑफ द अजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, फ्लो इज इनविसिड. ओके, सो ऑल दीज टर्म्स collectively are called energy gradient line. All these two terms collectively are called piezometric head. All these two collectively are called piezometric head. So P by rho g plus Z, इसको piezometric head बोलते हैं. Piezometric head, datum head plus pressure head. If you put piezometer, you know what is piezometer? Simplest of the manometer is called piezometer. Piezometer अगर लगाएंगे तो piezometric head मेजर करता है और वो फ्लूइड के लेवल से बता देता है कि फ्लूइड की एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और डेटम एनर्जी कितनी है. पीजोमीटर लगाओ पाइप पे, पता लग जाएगा. डिफरेंस ऑफ, नाउ इफ आई ड्रॉ द piezometric head at different section, that gives me hydraulic gradient line. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड एनर्जी ग्रेडियंट लाइन के बीच का डिफरेंस इज काइनेटिक हेड, जो पिटा ट्यूब से मेजर किया जा सकता है. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फोर्सेस डू यू सी इन बर्नौली इक्वेशन? फोर्सेस, बट इट इज एनर्जी इक्वेशन. यस, बट देन you can link Bernoulli equation somewhere with the second law of Newton also. Euler equation is the equation of motion, and as we know dynamics and kinematics, like dynamics is the input sometime and kinematics is the output. Force से output मिलती है. Second law of Newton ये बोलता है, अगर आप second law of Newton draw इसमें लिखोगे तो इसमें लिखा है F external is equal to rate of change of momentum and linear momentum, that is nothing but m into v. Now in the fluid flow, if I give you pressure and datum as the external forces, let us say pressure force and gravitational force अगर लगी है तो फ्लूइड को फ्लो करवाएगा. लेट मी गिव यू अ रिवर फ्लो. रिवर में द फ्लूइड इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ डेटम डिफरेंस. लेट अस से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द डेटम एंड फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी. तो ये जो F एक्सटर्नल है ये आपका प्रेशर एनर्जी, बर्नौली इक्वेशन, एंड ग्रेविटेशनल या डेटम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड. दिस पर्टिकुलर थिंग, एनर्जी
corresponding to velocity is called inertia. Inertia force. So pressure force is visible sir, gravitational force is visible, and third is inertia force. And न्यूटन के सेकेंड लॉ में जो F एक्सटर्नल आता है वो इनपुट है और उसका आउटपुट आपको इनर्शिया फोर्स की फॉर्म में नजर आएगा. दैट मीन्स आपका प्रेशर एंड डेटम या ग्रेविटेशन इज द इनपुट एंड उसका आउटपुट आपको इनर्शिया फोर्स की फॉर्म में नजर आता है. सो प्रेशर फोर्स, डेटम फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स. इनर्शिया फोर्स क्या होती है सर? वो रेट ऑफ जो चेंज करने, इनर्शिया को चेंज करने के लिए, मोमेंटम चेंज करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसका आउटपुट दिखता है, दैट इज इनर्शिया फोर्स. तो वो क्वेश्चन पूछता है बर्नौली इक्वेशन में कितनी फोर्सेज नजर आती हैं. न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और बर्नौली इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशन बना सकते हैं आप. ऐसे वो लिंक बैठाने की ट्राई करता है एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग. पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, पीजोमीटर क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, एंड आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं. दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट्स को जिसका आंसर नहीं आता. आई होप नाउ दिस स्मॉल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू.